Assalamu alaikum. Here I am with topic second of biology class 10th. It is neuron, structural and functional unit of nervous system in humans. Dear students, we all know that human body is made up of millions of different cells. Each cell a collection of different cells gives rise to a tissue, and each tissue is meant for performing a specific function in human beings. So this neuron, it is considered to be the nerve cell. It is that type of cell which actually in human beings it serves the function of transmitting messages in our body to control and coordinate various activities of our body. So for giving proper response to a stimuli which we discussed in the last topic, there is a requirement of a special type of cell or a tissue which could basically serve the functions of transmitting different messages in the body, and that very structure is known as neuron or nerve cell. It is the structural and functional unit of nervous system. In human beings, if we discuss a neuron, generally it is longest among body cells. It is the longest sized body cell, ranging over 100 centimeters in size. Now mostly in exams, when this question is asked, the question is usually asked as to write down the structure of neuron or nerve cell. So let's discuss what is the structure of neuron. This neuron or nerve cell, structurally it consists of three different components. One is known as cyton, one dendrites, and one component is known as axon of a neuron. Let us discuss them one by one by using this particular structure. The uppermost part, that is this portion of the neuron, this portion of neuron, it is known as the cyton. Now what is the composition of the cyton? The cyton contains its own cytoplasm. The cytoplasm of cyton is known as neuroplasm, which contains, let's say this is the neuroplasm of the cyton. This neuroplasm contains centric nucleus. This is the centric nucleus with a nucleolus. Then it contains some fibrils known as thread-like fibers known as neurofibrils. Now neurofibrils are meant for conduction of nerve impulses. Then it also contains small granular structures known as Nizzel's granules, which are actually obtained from rough endoplasmic reticulum ribosomal part, and these Nizzel's granules are meant for protein synthesis. This cyton also contains mitochondria, since mitochondria is used to provide energy for nerve impulses to be conducted from dendrites. It requires some energy
Now that energy is provided by mitochondria. These all things are present within the cyton. Let me recapitulate it once more. जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन जो होता है ह्यूमन बींग्स में लॉन्गेस्ट साइज बॉडी सेल है जिसका साइज ओवर 100 सेंटीमीटर्स है. अब स्ट्रक्चरली इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर 3 कंपोनेंट्स पे मबनी होता है, साइटॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन. पहले हम साइटॉन को जान लेते हैं. जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इन ब्रांचेस को छोड़ के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है इसको साइटॉन बोलते हैं. अब साइटॉन का एक अपना साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं. इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इसमें एक सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है जिसका अपना न्यूक्लियोलस होता है और न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, थ्रेड लाइक न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं. न्यूरोफाइब्रिल्स का काम क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सिस को, यानी जो नर्व इम्पल्सिस डेंड्राइट से आती हैं उनको ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं कंडक्ट करती हैं. इसके अलावा एक किस्म की ग्रैन्यूल्स होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स भी इसमें प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन सिंथेसिस भी प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती हैं. इसके लिए इसमें स्पेशल टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको निज़ल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं. इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये साइटॉन वाली पोर्शन में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये वो एनर्जी देता है, वो इसमें मतलब एबिलिटी देता है ताकि जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सके. यानी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिकॉज नर्व इम्पल्स दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. फिर ये कैसे मैसेज नीचे जाता है वो आप अभी देखेंगे. सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि नर्व कंडक्शन आगे जाए, यानी नर्व कंडक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. देन वी हैव पार्ट सेकेंड. पार्ट सेकेंड इज डेंड्राइट्स. अगर आप देखेंगे इसी के ऊपर वाले साइटॉन के ऊपर वाले पोर्शन पे ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. we can say that dendrites are basically branched nerve processes. branched nerve processes होती हैं. इनका भी न्यूरोप्लाज्म होता है और निज़ल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं अपने. इन डेंड्राइट्स का न्यूरोप्लाज्म होता है जिनमें न्यूरोफाइब्रिल्स और निज़ल्स ग्रैन्यूल्स दोनों होते हैं. अब इनका काम क्या होता है, जो ये डेंड्राइट्स होते हैं दे बेसिकली ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स होते हैं डेंड्राइट्स, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इनका काम क्या होता है, दे एक्चुअली रिसीव वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस. ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज रिसेप्टर्स. अब रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स आर सिंपली स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स. इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन्स में. मैं लास्ट यूनिट में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ. सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनको रिसेप्टर्स बोलते हैं. अब रिसेप्टर्स सिग्नल लेते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस इनिशिएट करते हैं, जो वो सिग्नल फिर होता है वो फिर चला जाता है, वो डेंड्राइट्स कंडक्ट करते हैं. तो ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, फ्रॉम स्पेशल सेल्स जो सेंस ऑर्गन्स में होते हैं. जब सेंस ऑर्गन से कोई सिग्नल आता है, पहला डेंड्राइट उनको कंडक्ट करता है, जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. डेंड्राइट मैसेज को ट्रांसफ़र करता है साइटॉन में, जो दूसरा पार्ट है, जो पहला पार्ट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. एंड देन द सेम इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूरॉन विच इज़ बेसिकली नोन एज द एक्सॉन. एक्सॉन क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चरली देखें, एक्सॉन ये वाला जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, दिस इज़ नोन एज एक्सॉन. एक्सॉन में क्या होता है, इसके इर्द गिर्द एक शीथ होता है, कवरिंग होती है, दैट इज़ नोन एज मेडुलरी शीथ. और एक और चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर, द मेन फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर इज़ इट अलाउज आयन्स, जो भी आयन्स होते हैं, पोटाशियम या सोडियम आयन्स जो पास होते हैं इन एंड आउट ऑफ न्यूरॉन, चाहे न्यूरॉन के अंदर आएँ, न्यूरॉन के बाहर जाएँ,
ये उनको प्रोपागेट करने में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऊपर से नीचे खींचने में नोड ऑफ रेनवियर का एक अहम किरदार या रोल होता है न्यूरॉन में। अब जो डेंड्राइट्स भी हमने देख लिए। डेंड्राइट्स का काम यही होता है, रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस टू साइटॉन। अब साइटॉन से सीधा चला जाता है जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, जो मैंने अभी बोला एक्सॉन, लार्जेस्ट नर्व प्रोसेस है एक्सॉन। अब इसमें एक्सॉन में क्या होता है, इट हैज़ न्यूरोप्लाज्म, इट हैज़ न्यूरोफाइब्रिल्स एज वेल, मगर इसमें निजल्स ग्रैन्यूल्स अवेलेबल नहीं होते। अब जो एक्सॉन होता है ये कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटॉन। ये साइटॉन से नर्व इम्पल्सेस मतलब वहाँ से कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्सेस को। यानी पहले डेंड्राइट्स, पहले सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स, फिर डेंड्राइट्स, फिर साइटॉन और फिर एक्सॉन, और फिर रिस्पेक्टिवली ये मैसेज जाती हैं जिस जगह इसको जाना होता है वहाँ पर फिर वो एनालाइज होता है और प्रॉपर एक रिएक्शन मिलता है। थैंक्स अ लॉट।